Question 18, final accounts. Sant and Mahant. Okay, I am starting the sum from the adjustments. In this question, current account is not given, so I have drawn capital account. Okay, first adjustment, closing stock 85,500, it's given in adjustment, so you will give double effect. I have given the double effect. First effect in trading account credit side, and second effect balance sheet current assets. Okay, second adjustment, provide 15% depreciation on plant and machine and 7.5% on furniture and fittings. Now in this question, plant and machine related so many points are given. I am explaining you first in the notes. See carefully in the notes. Check your trial balance. Plant and machines opening balance is given 33,300. It's given. Then again it's given addition in plant and machine on 1st July that I have added. So now you have 57,300 rupees balance in plant and machine account. And again you check the trial balance credit side. You have sold the plant and machine. Two values have been given. You have to consider book value 6,900. Old plant and machine plus new purchased and old sold. That information given. Now the point arises that you have to calculate depreciation. See how depreciation we have to calculate. 33,300 plant and machines opening balance is there. Okay, it is given in the trial balance. Date नहीं दी हुई है, यानी आप समझ जाना ये opening date का ही balance है. And you have sold the machine on the same date, book value 6,900. So simply minus कर दो. पहले इतना मशीन था, उसमें से इतने का मशीन सेल कर दिया. सो नाउ द रिमेनिंग मशीन इज 26,400. ओके, ये मैं ओपनिंग मशीन्स की ही बात कर रही हूँ. ओपनिंग मशीन इतना था, उसमें से इतना सेल कर दिया, तो ओपनिंग मशीन अब हमारे पास कितना बचा? 26,400. नाउ 15% डेप्रिसिएशन, सिंपली कैलकुलेट 3,960. ओके, ये तो हुई ओल्ड मशीन की बात. जो एडिशन हुआ है मशीन में 24,000, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा. सो एडिशन इन मशीन इज ऑन 1st July. सो 24,000, 15% depreciation, but date is July. So from July to March, 9 months. So into 9/12 करके you have to calculate, and your depreciation will be 2,700. Okay, 26,400 पे simple 3,960. जो new additional furniture है उसके जो 24,000 है, 15% as per the date 9 months के हिसाब से 2,700. So add both the depreciations, 3,960 plus 27,700. Your total depreciation will be 6,660. Okay, clear? Now I'm writing all the notes in the balance sheet properly, systematically. 33,300 ओल्ड बैलेंस ऑफ प्लांट मशीन, उसमें प्लस किया जो आपने न्यू परचेज किया है, उसमें से माइनस किया 6,900 विच यू हैव सोल्ड. आई हैव माइनस द बुक वैल्यू, और साथ में मैंने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी जो अभी अभी नोट्स में हमने कैलकुलेट की है. ओके, सिंपल. मशीन प्लस न्यू मशीन जो परचेज की, जो सेल की माइनस किया, और डेप्रिसिएशन भी एक साथ ही मैंने माइनस कर दिया है. 6,660 ये हमने माइनस करके बाहर शो कर दिया. ओके, नाउ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है तो इसका डबल इफेक्ट शो करेंगे. वेयर यू विल शो in trading account. Why? Because plant machine depreciation is shown on trading, not in PL as per the format. Remember this. Okay. Now you check your textbook. आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 6,900 बुक वैल्यू, और बाहर अमाउंट कॉलम में मार्केट वैल्यू दी है 4,800. सेल ऑफ प्लांट मशीन 6,900 का मशीन हुआ है सेल 4,800 में. कम वैल्यू में सेल हुआ ना, तो ये आपको लॉस हुआ.
6900 का 4800 में सेल हुआ है, तो 6900 minus 4800 you will get 2100. This is your loss. This you have to show in PL account, loss on sale of plant and machine. यहाँ पे प्लांट एंड मशीन का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो रहा है. ओके, इसको ध्यान से अच्छे से बार बार समझना. और फिर साथ में दिया है 7.5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स. उस पर तो हम सिंपली ले लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में ले लेते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. Furniture and fittings, the value is given 2560 और depreciation हमको कितना बोला है 7.5%. that you can calculate on the calci. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सेकेंड इफेक्ट PL अकाउंट डेबिट साइड. बाकी डेप्रिसिएशंस तो PL में ही आएंगी. ऑन फर्नीचर 192 हो गया. इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेस्ट ऑफ द सम इज वेरी क्लियर. प्रोवाइड बेड डेप्ट रिजर्व 2000 ऑन डेटर्स. सो करंट एसेट्स में आ जाओ. राइट डेटर्स. ओके, डेटर्स इज गिवन 6964940 और कुछ एडजस्टमेंट में नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया है. BDR न्यू. न्यू मीन्स फ्रॉम एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है. पुराना बेड डेप्ट BDR. सो नो नीड टू राइट द फॉर्मेट. जस्ट इसको मैं माइनस कर देती हूँ. ये तो हुआ आपका कौन सा सिंगल इफेक्ट. ओके, नाउ यहाँ पे आ जाओ. बेड डेप्ट ओल्ड इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड इट्स गिवन 836. ओके, मैं चलो आपके लिए फॉर्मेट लिख ही देती हूँ. ऑन नो. Remember this format? No, bed debt new is not given. BDR new is 2000. This is not given. Final amount 2836. अब भले पूरा फॉर्मेट लिखो, जो एम वैल्यूज हैं वो पुट करो. So third adjustment is also over. Now fourth adjustment, 6% interest is payable on partner's capital. So first, let's write the capital. By balance brought forward, capital is given Sant 80,000, Mahant 40,000. Okay, now calculate the interest on capital. जहाँ कैपिटल है उसके नीचे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं 6%. क्लियर. फर्स्ट इफेक्ट and second effect, as you know, PL appropriation डेबिट साइड. आपकी मर्जी, पहले यहाँ इफेक्ट देके फिर क्रेडिट में ट्रांसफर करो, यहाँ पहले देखे बाद में यहाँ पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संत एंड महन. वेरी सिंपल. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन. फर्स्ट इट्स गिवन प्रोडक्टिव वेजेस. यहाँ पे आ जाओ. टू प्रोडक्टिव वेजेस दैट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस 45,272. उसमें जितनी आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 784 वो ऐड कर देते हैं. ओके, 46056. ये ट्रायल बैलेंस से लिखी और ये एडजस्टमेंट से जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस की. और है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, check from the trial balance, it's given 6 advertisement expense 13 advertisement expense from the trial balance and checking. Yes, 13248. और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है 312. सो दिस इज टोटल. ओके, और आउटस्टैंडिंग हमको दिया है ऑफिस सैलरी.
ऑफिस सैलरी, चेक, दिस इज ऑल्सो गिवन। कहाँ पे दिया है? ये गया है हमको ट्रायल बैलेंस में। और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वो कितना दिया है? 400। सिंपल, प्लस कर दो 9180। क्लियर? और आपको दिया है टेक्निकल एक्सपेंस 320 आउटस्टैंडिंग। टेक्निकल एक्सपेंसेस that is given in the trial balance. If you check from the trial balance, your technical expenses that are given in the textbook, it is given technical expense as per the format you have to show in trading account. 400 trial balance plus outstanding from the adjustment 320, that is 720. अब ये सारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मैं डबल इफेक्ट दे देती हूँ। कहाँ पे दूंगी डबल इफेक्ट? करंट लायबिलिटीज में एज अ सेकेंड इफेक्ट, राइट? ये तो आपको पता ही है ना, करंट लायबिलिटीज। ओके, सेकेंड इफेक्ट, ये सारी एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट मैंने करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग करके, जो जो आउटस्टैंडिंग है ना उसका सेकेंड इफेक्ट करंट लायबिलिटी में दे दिया। ये हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। ओके, नाउ क्विकली मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाओ। ओके, ड्राइंग्स बोला है वो आप कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। प्लांट मशीन हो गया, फर्नीचर फिटिंग्स हो गया, डेटर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस वेयर यू विल राइट इन करंट एसेट्स। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख दोगे। वेजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री बोला है, फैक्ट्री बोला है ना, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस बोला है तो पीएल में लिख देना। रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री बोला है तो उसको ट्रेडिंग में लिख देना। क्लियर? टेक्निकल एक्सपेंस हम लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक क्विकली आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओके, दैट यू राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस सैलरी हमने लिख दी है। डिस्काउंट अलाउड पीएल डेबिट। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग डेबिट। बेड डेब्ट्स हम लिख चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ उसको जहाँ जहाँ मैंने बोला वो रखते जाना फाइनल अकाउंट में। नाउ ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट्स वो हम बैलेंस लिख चुके हैं। क्रेडिटर्स आप कहाँ लिखोगे? करंट लायबिलिटी में। सेल ऑफ प्लांट मशीन हो चुका है, सिंपल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट इज गिवन 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। अब आप लोन कहाँ पे लिखते हो? आपको पता है ना, नॉन करंट लायबिलिटीज में हम लोन लिखते हैं, तो सिंपल नॉन करंट लायबिलिटीज में आप लोन लिख देना 10,000। और इंटरेस्ट बोला है 5%, तो आप कैलकुलेट कर लेना 10,000 का 5% क्या आएगा? 500। लेकिन ब्रैकेट में 1/10/16 डेट दी है, तो इस हिसाब से 6 मंथ्स हो रहे हैं, यानी 250 रुपये आधा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। लोन कहाँ लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी में, और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में शो कर देना, करंट लायबिलिटी, राइट? इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको कैलकुलेट करना है, बोलें कि नहीं बोले, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हुआ। डबल इफेक्ट क्यों? क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। और लास्ट में दिया है कमीशन। अब कमीशन क्रेडिट साइड दिया है तो आप भी उसको इनकम मान के पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देना, एंड देन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंपली क्लोज द सम। ओके, सो कंप्लीट दिस सम। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से कंप्लीट कर लेना।